आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिना सोचे भी बोलना भी कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सो वेलकम टू अर्न 1 मिलियन चैलेंज इन 1 year. दिस इज डे 55 ऑफ 365 डे जर्नी. In this video, I am documenting myself every single day where I share the things which is most important, I believe. So the first thing is I share like what I learned from the book which I am reading currently. And the second point is what I learned from the book podcast which I have seen today, and what is the globally going around the going is like geopolitics and Indian news. And the last point is what is going in the AI. So these are some points we will discuss in this video. So let's understand one thing that and I forget the one thing that how was my day, what I struggled today, what is the challenging for me. As you know, I'm working on hospitality. There's some every day is challenging for everyone because of especially in the food and beverage service who is working in that. So there is every time challenging that you cannot imagine how challenging your life is. If you're working, that you know. If you're not working, if you don't know anything about hospitality, especially F&B, that you don't know anything. Why I'm saying, because every single day start the morning with the breakfast. There's a 300 500 people and some of staff, the full crowd, and how you're handling and giving the order every single case. This is really big task. And after finish this task, start ready to for the lunch. That time has only 1 or 2 hours. That's only 1-2 घंटे में पूरा रेडी करना है. दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से. उसके बाद डिनर के लिए थोड़ा टाइम हमें मिलता है. एंड ऑल्सो डिनर लंच फिनिश होता है अराउंड 2:30 एंड 3 o'clock. उसके बाद 6:30 पे तुम्हें फिर से डिनर रेडी करना है. उसके बीच में तुम्हें सारा कुछ रेडी करना है. दैट्स रियली वंडरफुल एंड दैट्स रियली चैलेंजिंग फॉर एवरीवन. तो आज का स्पेशल डे था कि व्हाट हैपन अराउंड द डे. आज क्या हुआ कि मेरे एक केस ने asking something or मेरा colleagues, and I just without thinking I just give to reply him. The reply was like, I from my side that was okay, and but without thinking that's why what happened, the guests and my colleagues feel offended क्योंकि I didn't think too much. I just what they said I just replied them. उसके बाद कुछ देर में realize किया कि what I said this one, I think this is I have to change my tone. I had to change my tone because I just said that it's totally different. So I believe next time whenever happen, I will try to think and speak. This is the part of today and topic. And next point is that what I learned from the book. The book आज मैं पढ़ रहा हूँ अभी The Art of Communication. That's really wonderful book. If you read this book, you will change your personality in just one book. एंड योर पूरा पर्सपेक्टिव तुम्हारा जो स्पीकिंग कम्युनिकेशन का है दैट विल चेंज. यू कैन नॉट इमेजिन हाउ मच लाइक तुम क्या क्या इफेक्टिव चीज़ें होंगी. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर बताया बुक के अंदर, इफ़ यू स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग दैट्स सो बैड. सो देयर इज़ अ पंच लाइन आई हैव रीड दैट, स्पीक you speaking without thinking there's somewhere bad, speak think before what you saying. सो दीज आर थिंग्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और इसके अंदर 3 पॉइंट जो दिए हैं बुक के अंदर, दिस इज चेक बिफोर स्पीक व्हाट यू नीड टू से. लाइक इज़ इट नेसेसरी फॉर मी, अगर तुम्हारी ज़रूरत है तभी बोलो, अदर बस काम चल रहा है डोंट स्पीक अबाउट दैट. मतलब जिस तरीके से तुम्हारे किसी ने कुछ बोला उसके टेक द पॉज 5 सेकेंड एंड जस्ट स्पीक. तो फर्स्ट तुम्हारा रिएक्शन खुद से होना चाहिए कि इज़ इट नेसेसरी, इज़ इट काइंड, और इज़ इट राइट और नॉट. दिस 3 थिंग्स इफ़ यू स्पीकिंग, अगर तुम ये 3 सवाल पूछोगे अपने आप से बोलने से पहले, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कन्वर्सेशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग विल चेंज. पीपल विल बी शॉक्ड. किसी सामने वाले गुस्से में बात किया एंड तुमने रियलाइज़ किया वाई ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, वाई ही इज़ वांट टू दैट सेम वे आई शुड रिप्लाई हिम. बट तुमने सोचा इज़ इट नेसेसरी, नहीं ज़रूरत है छोड़ो जाने दो. इज़ इट काइंड, पोलाइटनेस, नो इट्स फाइन, नो नीड. इज़ इट ट्रू, और जस्ट एजम्पशन पे हम बात कर रहे हैं. तो ये हम 4-5-3 पॉइंट अगर हम रखेंगे दैट एवरीथिंग विल चेंज. लेट्स कम ऑन द पॉइंट इन व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट. देखो, जब हम डे स्टार्ट करते हैं तो पूरा हमारा फोकस रहता है कि हमने आज क्या सीखा फ्रॉम द मेन टॉपिक.
फॉर एग्जांपल आज हमारा टॉपिक है स्पीक बिफोर थिंक बिफोर स्पीक, सॉरी दैट्स लिटिल टाइम, थिंक बिफोर स्पीक। तो हमारा मेन कंटेंट यही, आज की वीडियो का टॉपिक यही है, बट हम इससे ये पूरा वीडियो हमारा ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहेगा। तो वॉच जो व्हाट आई वॉच इन द पॉडकास्ट दैट, उसके अंदर क्या था कि एक लाइन सबसे बेस्ट लगी मुझे, हमारा दिमाग है ना ऑटोमेशन पे होता है एंड वी रिप्लाई ऑटोमेटिकली, बट अगर हम उसको थिंकिंग के बाद रिप्लाई करें, दैट्स रियली वंडरफुल। When someone say you give the automated reply, don't do it. Just stop and do which is right. Think and speak. This is really wonderful, and this is I watched the video Jay Shetty. This is really nice. Then when you speaking, that you need to understand. So thus you will enjoy it. And next point is how what is going in the geopolitics. जियोपॉलिटिक्स में अभी हमारा इंडिया और मिडल ईस्ट के बारे में जो अभी एवरीवन नोज दैट वॉर इज़ गोइंग ऑन। तो क्या हुआ कि इंडिया और मिडल ईस्ट का हमारा ट्रेड है ना, वो थोड़ा सा इन स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बिकॉज आर शिप इज़ नॉट गोइंग, बिकॉज स्ट्रेट हार्मूज दैट स्टेइंग, मतलब सबको उसने बंद कर रखा है। हमारे लिए ओपन है बट इतना भी ओपन नहीं है, बट दे आर ट्राइंग टू, बिकॉज वहाँ पर एक नहीं है, सिर्फ बहुत सारे हैं, तो दे आर ऑल्सो कन्फ्यूज दैट विच इज़ द इंडियन शिप, विच इज़ द चाइनीज शिप, विच इज़ द थाईलैंडी शिप। तो उस तरीके से उनको भी रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट टेंशन ये कि अगले ऑलमोस्ट 28 डेज हो गया है, अभी 28 डेज होने वाला है, कि अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है, स्टिल वॉर इज़ गोइंग ऑन। और बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही दैट समथिंग विल हैपन बिगर, और कहीं ट्रम्प भी बोल रहे हैं कि वी आर गोइंग टू स्टॉप इट्स नॉट एट मच रिक्वायर, वी विल डिस्कस एंड वी विल नेगोशिएट। तो कहीं ना कहीं स्टॉप हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, दोनों चीज़ें चल रही हैं, और मे बी ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, माइट भी। और व्हाट इज़ गोइंग इन ए आई की फील्ड में इज़ टोटली इज़ गोइंग, लॉट्स ऑफ थिंग इज़ गोइंग ऑन। और मैं सोच रहा था इस जो हमारा टॉपिक्स है ना, जो हम जो टॉपिक्स रखते हैं उनको और रिसर्च करके लेके आएँ। सो मैं ट्राई करूँगा कल से और थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च करूँ और 2-3 पॉइंट और ऐड करूँ, जिससे हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं व्हाट इज़ गोइंग। अगर अगर इफ़ यू आर स्पेंडिंग 10 minutes ऑफ एवरी सिंगल डे ऑन माई वीडियो एंड इफ यू वॉचिंग डॉक्यूमेंटिंग माई सेल्फ, तो समवेयर यू शुड गेट समथिंग, दिस इज़ आई बिलीव, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। और जैसे मैंने बताया था कुछ दिन पहले दैट आई हैव क्रिएटेड ऑलरेडी ई बुक, सो यू कैन गो एंड check out just only Gumroad, that's a website I posted there. That's a tool to selling anything on online, so you can go and watch that and get that book. That's wonderful, that can change your life. That's just only 21 days roadmap communication. So where we were about talking about एआई के बारे में। एआई क्या कर रहा है, एआई हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज क्या कर रहा था कि आज जस्ट आई वाज ट्राइंग टू, मैं कुछ एप्लीकेशन चेक कर रहा था कि कौन सा एप्लीकेशन इज़ द बेस्ट टू एडिटिंग फॉर आईफोन। तो वहाँ पर एक InShot आया, कैपकट, VN एंड सम मोर। तो मैं देख रहा था कि इसमें ज़्यादा अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं, तो कैपकट भी ठीक लगा मुझे, और VN मैंने ओपन भी नहीं किया अभी, और InShot तो मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ लॉन्ग वीडियो के लिए, शॉर्ट वीडियो के लिए अभी तक यूज़ नहीं किया। बट समवेयर दैट्स रियली वंडरफुल एंड दैट हैज़ सम गुड फीचर, बट अनफॉर्चुनेट they are we have to pay. If you want a good feature, premium feature, they have to pay some subscription we have to take, and same thing in short में भी है। तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा गिव अप किया है। बट और मैं एक चीज़ और क्या कर रहा था कि अभी हम मिडल ईस्ट में हैं, तो जॉब को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने एआई से पूछा आज, फॉर एग्जांपल ChatGPT, क्लाउड एंड परप्लेक्सिटी एंड ग्रोक। तो मैंने बोला टेल मी few skills that I can learn within month, so I can start to earning $100 per month. I mean starting at least $100 होना चाहिए। तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट दिया मुझे एडिटिंग, दूसरा था फ्रीलांसिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग, राइटिंग हुक्स एंड कॉपीराइट, इस तरह के पॉइंट दिए। तो मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने उसको पूछा कि वेयर आई कैन गेट द क्लाइंट, सो देयर आई कैन सेल माई स्किल्स। तो मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ और थोड़ा सीखना चाहिए। सीखना इन द सेंस कि मुझे कॉपी राइटिंग छोड़ दो, मुझे हुक राइटिंग आता है ऑलरेडी, जिसमें मैं बुक जैसे अपने हुक लिया था मैंने। सो आपको याद है फर्स्ट टाइम मैंने क्या बोला था, दैट्स दिस वंडर, एक मैंने लाइन जो बोली उसने मेरा सब कुछ चेंज कर दिया विदाउट स्पीकिंग, ऐसा कुछ था ना, इफ़ यू डोंट रिमेंबर।
अगर याद है तुमको, तो ऐसे कुछ था। तो इसी तरीके हुक रखना चाहिए। और स्क्रिप्ट राइटिंग और कंसल्टेंट्स, और इफ़ यू टॉक अबाउट समथिंग दैट अबाउट सेल्स मार्केटिंग एंड साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, फाइनेंस, इस तरह के पॉइंट हम रख सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। तो मैं फिगर आउट करता हूँ, देखता हूँ एक महीने में क्या सीख सकता हूँ और कैसे क्लाइंट मिल सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। तो लेट्स सी, मैं कुछ सीखूंगा ज़रूर इस महीने में, इवन चाहे मैं एक्सेल सीखना पड़े या कुछ और सीखना पड़े, मैं ट्राई करूँगा। जो 20 घंटे वाला कॉन्सेप्ट था, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर था, इफ़ यू वांट टू मास्टर इन द वर्ल्ड दैन यू हैव टू स्पेंड 10,000 आवर्स ऑन वन टॉपिक। अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम फाइनेंस में जाना चाहते हो, तो फाइनेंस के लिए तुम्हें 10,000 अगर आवर्स उस पर स्पेंड कर दे स्टडी में, तो यू विल बी बेस्ट इन द वर्ल्ड। टॉप 10 वर्ल्ड के जो टॉपर होते हैं सेम टॉपिक पे, देन यू विल बी। तो इसलिए उसने एक जो टेड टॉक पे देख रहा था, अगर 20 घंटे तुम किसी चीज़ को लिए देते हो, तो दैट समवेयर ऑल्सो इन्हेंस एंड तुम यू आर द गुड टॉप 10 मतलब आने लगते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10,000 जो वर्ल्ड के टॉप 10 है उसमें नहीं, एटलीस्ट तुम इतना सीख जाओगे कि तुम चीज़ों को क्लियर करने लगोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए क्या करूँ, सिर्फ एडिटिंग ही सीख लूँ, जस्ट ओनली अबाउट अ फ़ोन और सॉफ्टवेयर से, तो 20 घंटे अगर मैं कंप्लीट करता हूँ टास्क, तो समवेयर आई विल लर्न विच यू कैन नॉट इमेजिन। तो ये हमारा आज का पॉइंट था तो बहुत कुछ मैं इतना बोला नहीं, जो मैंने पॉइंट लिखे उस पर बोलना ज़्यादा बेटर लगता है। और मैं आउट ऑफ द पॉइंट नहीं जाना चाहता जिससे आपको लगे कि आई जस्ट स्पेंडिंग टाइम। सो thank you so much for watching this video. This is day of my journey 55 of 365 journey. तो अगर आपके पास कुछ भी if you have any kind of comments or message, you can leave there. We will discuss and we will come back tomorrow with a new update and new topic. Thank you so much.